السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز شہر نامے کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن اور میں ہوں عائشہ آفرین۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ گجرانوالہ میں تھانہ پیپلز پارک کالونی پولیس کی کارروائی، 5 منشیات فروش گرفتار، قبضے سے 4 کلو گرام چرس اور 30 لیٹر دیسی شراب برآمد، مقدمہ درج۔ چنیوٹ میں سفاق باغ نے رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرنے پر اپنے 14 سالہ بیٹے کو گلے پر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا، ملزم موقع سے فرار، مقدمہ درج۔ فتو کی مدینہ کالونی میں گھر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 3 مسلح ڈاکو اہل خانہ کو 1 گھنٹے یرغمال بنا کر 1 لاکھ نقدی 3 تولہ زیورات چھین کر فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ راجن پور کی تحصیل روجھان میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور کوٹ ادو میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈا بازاروں کا رخ کر لیا، قیمتیں زیادہ ہونے سے خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، شہر نامے کا کریں گے آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔ شہر نامے میں خوش آمدید۔ اور شہر نامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں سفاق باپ نے رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرنے پر اپنے 14 سالہ بیٹے کو گلے پر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا، ملزم موقع سے فرار ہو گیا۔ چنیوٹ میں رشتہ داروں سے ملنے سے منع کرنے پر سفاق باپ نے اپنے 14 سالہ بیٹے کو گلے پر کلہاڑی کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ بھوانا اعجاز عمران کے مطابق ملزم حق نواز نے اپنی بیوی کو بھی گھریلو جھگڑے پر قتل کر دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد کے احکامات کے پیش نظر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلے میں تھانہ پیپلز کالونی پولیس کارروائی کرتے ہوئے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 کلو گرام چرس اور 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں گجرانوالہ سے اپنے نمائندے محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔ سٹی پولیس آفیسر گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی کے احکامات کے پیش نظر ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس سلسلہ میں تھانہ پیپلز کالونی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 4 کلو گرام چرس اور 30 لیٹر دیسی شراب برآمد کر لی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی ساجد محمود سہول کے مطابق گرفتار ہونے والے ملزمان میں کاشف، شہزاد، سکندر، اللہ دیتا اور سلیمان عرف چھما شامل ہیں، جن کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کا نسور ہیں اور ان سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ شہریوں نے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے پر ایس ایچ او پیپلز کالونی گجرانوالہ ساجد محمود سہول اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کیمرامین فاضل خان کے ساتھ محمد ندیم ڈار، میٹرو ون نیوز، گجرانوالہ۔ اور اب رخ کریں گے پتوکی کا، جہاں پہ چوری اور ڈکیتی کا سلسلہ جاری ہے اور پولیس روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ پتوکی مدینہ کالونی میں گھر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو 1 گھنٹہ یرغمال بنا کر 1 لاکھ نقدی اور 3 تولہ زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ مصطفی آباد کے نادرا آفس میں کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی عروج پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق نادرا آفس مصطفی آباد میں نادرا آفس میں کورونا ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مناسب فاصلے کے نشانات تو لگائے گئے، لیکن عوام کا ہجوم فاصلے کے نشانات کو نظر انداز کرنے لگا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں کورونا ایس او پیز پر کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے میونسپل کمیٹی کے جنا ہال میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشد علی غوری کی اس رپورٹ میں۔
कोरोना वायरस से बचाव और हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद के हवाला से AC मोहम्मद तैयब चौधरी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी हरुणाबाद के जना हाल में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में शहर की मुख्तलिफ ताजा तंजीमों के नुमाइंदों समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर AC मोहम्मद तैयब चौधरी ने खिताब में कहा कि हमें कोरोना वायरस के मौज़ी असरात से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करना होगा। बासूरत दीगर हमारा इलाका इससे बहुत ज्यादा मुतासर होगा, क्योंकि जिला बहावलनगर में तहसील हरुणाबाद में कोरोना एक्टिव मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है। AC मोहम्मद तैयब चौधरी ने दुकानदारों से अपील में कहा कि आप खुद भी मास्क का इस्तेमाल करें और अपने ग्राहकों से समाजी फासला रखते हुए इनको भी मास्क के बगैर दुकान में ना आने दें। ताजर नुमाइंदों ने इजलास में खिताब से कहा कि हम हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए अपना कारोबार करेंगे और आइंदा भी आने वाले हुकूमत के अहकामात पर लब्बैक कहेंगे। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। मलिकवाल में पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। लाहौर में चंद रोज कबल अगवा होने वाले शख्स की लाश बरामद कर ली गई। और किस शहर में क्या हुआ जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलकवाल के इलाके नैन रांझा में बुनियादी मरकज सेहत में 30 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर से मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कहना के इलाका नवाब मशकूर टाउन से चंद रोज कबल अगवा होने वाले 30 साला रशीद की सुंदर के इलाके से लाश बरामद। साबका SHO कहना सकलैन शाह और चौकी इंचार्ज इंडस्ट्रियल एरिया आसिम के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मगवी के अगवा होने पर थाना कहना में दरख्वास्त के बावजूद बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि रशीद की लाश भी बरामद होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। साबिका SHO कहना सकलैन शाह को चंद रोज काबिल तबादला करके रायबंद सिटी तैनात किया गया था, जबकि बेहतर कारकर्दगी के चक्कर में मुतादिद शहरियों के साथ होने वाले वक़ुआजात की बर वक्त FIR दर्ज नहीं हो सकी। शहरी पुलिस के खिलाफ नाराज नजर आते हैं। बुरेवाला रेस्क्यू 1122 का गरीब मरीज को सर्विस मुहैया करने से इनकार। इंसानी खिदमत के लिए बनाए गए रेस्क्यू 1122 की अनोखी मंतक सामने आ गई। शहरनामे में खुश आमदीद। और आपको बताएं कि मलिकवाल में पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। आपको आगाह करते चलें कि मलिकवाल में पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। मलकवाल के इलाके नैन रांझा में बुनियादी मरकज सेहत में 30 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें इलाका भर से मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कहना के इलाका नवाब मशकूर टाउन से चंद रोज कबल अगवा होने वाले 30 साला रशीद की सुंदर के इलाके से लाश बरामद। साबका SHO कहना सकलैन शाह और चौकी इंचार्ज इंडस्ट्रियल एरिया आसिम के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मगवी के अगवा होने पर थाना कहना में दरख्वास्त के बावजूद बर वक्त मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि मगवी रशीद की लाश भी बरामद होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। साबिका SHO कहना सकलैन शाह को चंद रोज काबिल तबादला करके रायबंद सिटी तैनात किया गया था, जबकि बेहतर कारकर्दगी के चक्कर में मुतादिद शहरियों के साथ होने वाले वक़ुआजात की बर वक्त FIR दर्ज नहीं हो सकी। शहरी पुलिस के खिलाफ नाराज नजर आते हैं। बुरेवाला रेस्क्यू 1122 का गरीब मरीज को सर्विस मुहैया करने से इनकार। इंसानी खिदमत के लिए बनाए गए रेस्क्यू 1122 की अनोखी मंतक सामने आ गई। रात 11 से 5 बजे तक इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस शहरियों के लिए बंद। तशवीशनाक हालत के पेश नजर मुल्तान रेफर किए गए मरीज को निश्चित अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। एम्बुलेंस सर्विस देने से इनकार कर दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया को 2 लेक्चरर्स और 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा हेल्थ की हिदायत पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया को बंद कर दिया गया। लेक्चरर नईम खान और रियाज हुसैन, तलबा असमत और अंसर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। महकमा सेहत ने 250 तलबा और लेक्चरर्स के सैंपल तज्जिया के लिए लेबोरेटरी भेज दिए। नेक औलाद सदका जारिया। शुजाबाद के पसमानदा इलाके राजाराम से ताल्लुक रखने वाले इसहाक जिलानी ने अपने वालिद महरूम के इसाले सवाब के लिए बच्चों और बच्चियों के लिए दस्तकारी फ्री सेंटर्स का इनेकाद किया है। शुजाबाद खानपुर काजिया में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक। डाकू शहजाद चन्ना और इरफान मियों को पुलिस रिकवरी के सिलसिला में ले गई थी कि डाकुओं के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। 16 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने पुलिस वैन पर मुबैना हमला किया। दोनों डाकू फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस वैन पर गोलियां लगी थी। हमला आवर मुसल्ला डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। बुरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान का सर्कल बुरेवाला के SHOs के क्राइम मीटिंग का इनेकाद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बुरेवाला का भी दौरा किया। फतेहपुर थल जीप रैली के मौका पर महकमा लाइव स्टॉक की किसानों में आगाही मुहिम का इनेकाद। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुश्ताक अहमद, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर तारिक इकबाल ने किसानों में मवेशी बचाओ और मुर्ग बानी को फरोग
फरोग देने के लिए ब्रीफ किया। डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक साउथ पंजाब जनाब मलिक मंसूर अहमद का स्टॉल का विजिट। लिया में किसानों का इस्तेहसाल जारी। गंदम का बीज नायाब। 6 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त। सरकारी सतह पर सिर्फ 18,000 एकड़ का गंदम का बीज किसानों को फराहम किया गया। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का स्टोर खाली, किसान परेशान। शुजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 बैनुल स्वाबी गैंग के सरगना समेत 97 इश्तिहारी डाकू गिरफ्तार। डाकू कत्ल, डकैती, राहजनी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। डाकुओं से 2 करोड़ से जायद मालियत का सामान, नकदी और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। गुजरात थाना सिटी सराय आलमगीर में हवालात में बंद मुलजिम मोहम्मद बूटा व जान मोहम्मद कौम जट सकना जंदाल, जो के मुकदमा नंबर 257 मोरखा 12/9/2020 में रिमांड पर था, आज अरल सुबह हवालात के बैतुल खला में गया, जो काफी देर बैतुल खला से ना निकला। ड्यूटी पर ममूर अब पुलिस अफसरान ने हवालात में जाकर चेक किया तो मज़कूरा की लाश रोशनदान के साथ लटक रही थी। वकुआ की इत्तला पर फौरी नोटिस लेते हुए DPO गुजरात ने तफ्तीशी अफसर नाइट मुहर्रर और हवालात ड्यूटी पर ममूर एहलकार को मुअत्तल कर दिया, जबकि SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील देकर इन्हें वाकया की मुकम्मल इंक्वायरी करते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। और पतोकी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पतोकी के नवाही गांव तारागढ़ में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 14 साल आमना जबकि 3 अदद औरतें नगमा, रुखसाना और सुरैया फायरिंग लगने से शदीद जख्मी हो गई हैं। हवाई फायरिंग की CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। और अब खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से, जहां पर सर्दी में इजाफा होते ही लोगों ने मौसम सरमा की खास सौगात ड्राई फ्रूट्स खरीदना शुरू कर दिए हैं और दुकानों का रुख कर लिया है। सर्दी के मौसम में डॉक्टर्स का कहना है कि खुश्क मेवाजात इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। शेखोपुरा से देखते हैं ब्यूरो चीफ चौधरी शहजाद असगर की ये रिपोर्ट। सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में सर्दी की सौगातें नजर आने लगती हैं। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। खुश्क मेवाजात खाने वाले अफराद इसे सर्दियों की सौगात करार देते हैं। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। पता है ड्राई फ्रूट सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ड्राई फ्रूट लेने आया हूँ और अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू खरीदा है। और आपको पता है सबको ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सर्दी में, और ये खाना चाहिए और ज़िंदगी एंजॉय कर रहा हूँ और अपने घर के लिए भी ख़रीदने आया हूँ और ये बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। मैं आया हूँ खुशक मेवा लेने के लिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये खुशक फ्रूट लेके जाऊँगा। बादाम, अखरोट, मूंगफली। आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये सर्दियों की अहम सौगात है। चौधरी शहजाद असगर, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, शेखपुरा। राजनपुर की तहसील रुझान में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। पानी की कमी का शिकार वहां के लोगों को किसका है इंतजार, ये बता रहे हैं AD आमिर अपनी इस रिपोर्ट में। जब से चलना फिरना सीखा है, ये सुबह से शाम तक पानी ही भरता रहता है। इसका बाप मजदूर, भाई मवेशी चराता है और घर का पानी भरना इसकी जिम्मेदारी है। कम उम्र की ड्राइविंग से हादसात का खतरा मोल लिए ट्रैफिक कवानीन से नाशना ये बच्चा बेखौफ होकर अपनी घर हस्ती के लिए तलाश व आबो जान के लिए जुटा रहता है। छोटे छोटे बाल है, पानी है 5-6 किलोमीटर। पाकिस्तान को वजूद में आए 7 दहाइयां बीत गईं, मगर ये लोग बचपन से जवानी तक पानी भरते गुजर गए। भाईजान देखे ना, ये जो काम है हमारा पानी का किल्लत जो है, दादा बाबा से यही काम चल रहा है। पहले तो मोटरसाइकिल नहीं थे, गद्दा के ऊपर हम लेते थे, हमारे बड़े गद्दों के ऊपर। मुशक्कत अब भी जारी है। ये मनाजिर राजनपुर की तहसील रुझान के है, जहाँ के दामानी इलाकों में जेर जमीन पानी कड़वा होने से लोग पानी जैसी नेमत को तरस रहे हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी जरखेज कि कोह सुलेमान के सिलावी रेले से जरा सी नम हो तो बीज डालें और फसल तैयार। कमोबेश 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल इस तहसील की ज्यादातर आबादी पानी जैसी नेमत से महरूम है। यही वजह है कि इंडस हाईवे रोड किनारे 2 बोर नस्ब तो हैं, जहां से मीठे पानी दस्तयाब है, मगर लोग 10 रुपए फी केन के हिसाब से पानी लेने पर मजबूर हैं। ये लोग मकामी नुमाइंदों से तो मायूस हैं, मगर किसी मुखय्यर हजरात पर उम्मीदें अब भी वाबस्ता हैं। शबरोज पानी की तलाश में निकले इन लोगों को उम्मीद है कि जरूर कोई मसीहा आएगा जो इन्हें मुफ्त पानी की इस नेमत को उनकी दस्तरस में लाने में मुआविन और मददगार होगा। AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर।
और अब रुख करते हैं कोट अद्दू का, जहां पर सर्दी की आमद के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदार खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं कोटदू के नवाई इलाका तोंसा मोड़ पर मौजूद हूँ। लंडा बाज़ार में यहाँ पर लंडा बाज़ार लगाया गया है। सर्दियों की आमद में यहाँ पर लोगों का जो हजूम है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और यहाँ पर गर्म कपड़े और लुकारें जो है चादरें वो लेने के लिए लोगों का बहुत जमे गफ़ीर यहाँ पर जमा है। यहाँ पर जब लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पहले की निस्बत महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त अहले इलाका जो है हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद मैं उनसे जानना चाहूँगा, जी बेटा आप ये बताएं कि जो पहले चीज़ महंगी मिलती थी या सस्ती मिलती थी, अब और उसके अपना पहले की क्या निस्बत है? जी पहले हम लेने आते थे लंडा बाज़ार से, जो चीज़ हमें 50 रुपए में मिलती थी, 100 रुपए में मिलती थी, वो आज 200 रुपए मिल रही है। हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे रेट है। वहाँ लंडा बाज़ार में कोई फ़र्क भी नहीं रह गया। गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आके लंडा बाज़ार से सर्दियों से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े ले या कोई स्वेटर वगैरह कोई चीज़ ले। यहाँ सब चीज़ महंगी है। बाज़ार में भी नहीं जा सकता गरीब बंदा और लंडा बाज़ार में भी नहीं जा सकता। गरीब कहाँ जाए? लंडा बाज़ार में भी इतनी महंगाई है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, मजीद मैं उनसे जानना चाहूँगा। भाई आप बताएं कि पहले के साल निस्बत महंगाई पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा है सर। अगे हर चीज़ सस्ती मिलती है, हुण महंगी मिलती पई है। जी जैसा कि आपने सुना है, शहरी से इनका कहना है कि पहले की निस्बत जो पहले चीज़ 150 रुपये में फ़रोख्त होती थी, अब वही चीज़ जो है 300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस महंगाई के तूफान को तोड़ा जाए। जी ओद शरीफ के करीब जिले रहमियार खान को मिलाने वाली वाहिद सड़क अड्डा गुमानी से KLP रोड टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज खान शिकरानी से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर शरीफ के इलाका मौजा लाडन वाली में। दो इजला बहावलपुर और जिला रहीमियार खान को मिलाने वाली और बहुत से मवाज़ियात को मिलाने वाली ये सड़क अड्डा गमानी से लेकर KLP रोड तक जो है काफ़ी अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन को यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर सड़क में गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं और लोगों की लाखों रुपये मालियत की गाड़ियाँ जो हैं वो खटारा बन चुकी हैं और यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड के टूटने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दिनों में अगर खुदा न खास्ता मरीज़ को कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते और वो मरीज़ घरों में ही तड़पते रहते हैं। हमारे मौजूदा हुक्मरान से पुरजोर अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द असर नो तामीर किया जाए ताकि हम मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस रोड के टूटने की वजह से जो है हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अगर बारिश आ जाती है यहाँ पर तो 10-10 दिन तक जो है यहाँ पर पानी ठहरा रहता है। अगर किसी मरीज को इमरजेंसी हो जाए तो हम उसको हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सकते, हम घरों तक ही महसूर रह जाते हैं। इनका मजीद कहना था कि हमारी हुकाम बाला से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाया जाए ताकि हम मजीद मुश्किलात से बच सकें। जी शुक्रिया शहबाज। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपको बताएं कि जंग असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया है। इसी हवाले से देखेंगे ये खुसूसी रिपोर्ट। जंग के सैकड़ों असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और SSEs ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाले खवातीन और मर्द हजरात ने अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। टीचर यूनियन के जिलाई सदर हाजी मुश्ताक अहमद, फोकल पर्सन गुलाम फरीद और दीगर मुकर्रीन ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि वो पहले ही NTS टेस्ट और महकमाना इंटरव्यूज देकर मेरिट पर भर्ती हुए थे और कई सालों से महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं। अब जबकि इन्होंने कानून के मुताबिक मुस्तकिल किया जाना चाहिए था, लेकिन इन्हें मुस्तकिल करने की बजाय दोबारा PPSC का इम्तिहान पास करने की शर्त आयद करना इन पर जुल्म है। उन्होंने कहा कि PPSC का इम्तिहान पास करने का कानून 2018 में बनाया गया जबकि इनकी भर्ती इससे पहले की गई थी। इन्होंने कहा कि अब भर्ती होने वाले बेशतर असाजा उम्र मुकर्ररा हाद से तजावज़ कर चुकी हैं। मुजाहिरीन में शरीक उस्ताज़ा ने कहा कि अगर इनके मुतालबा तस्लीम न किए गए और इन्हें मुस्तकिल न किया गया तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। फारूक हाशमी, मेट्रो वन न्यूज़, झांग।
और आपको बताएं कि बोरेवाला में सिविल सोसाइटी नेटवर्क और फलाही इदारे की जानिब से 24 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। तफसीलात के मुताबिक बोरेवाला में सिविल सोसाइटी नेटवर्क और कौसर मजीद फाउंडेशन की तरफ से यतीम, गरीब, नादार और मुस्तहिक घरानों की 24 बेटियों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के पेश नज़र दुल्हा और दुल्हन की तरफ से सिर्फ 10 अफराद को मदऊ किया गया था। घरेलू तंगदस्ती और मुफलिसी की वजह से अपनी बच्चियों के हाथ पीले करने की सकत न रखने वाले वालिदैन और अपने जीवन साथी के साथ रुखसत होने वाली बेटियों की खुशी दीद नहीं थी। रश से बचने के लिए मेहमानों को पार्सल खाना फराहम किया गया। और अब आपको बताएं कि तहसील अमन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बल्दिया ऑफिस वजीराबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बल्दिया मुलाजमीन और अफसराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। बल्दिया ऑफिस वजीराबाद में मुनक्किदा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफिसर फयाज अहमद बड़ाइच और चेयरमैन अमन कमेटी मलिक यूसुफ चांद ने की, जबकि स्टेट सेक्रेटरी के फराइज प्रोफेसर अरशद बुखारी ने सर अंजाम दिए। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी सईद अहमद अरशद ने हासिल की। मेहमान खसूसी प्रिंसिपल मौलाना जफर अली खान डिग्री कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आसफ हजारवी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालते हुए कहा कि तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्दाल, रवादारी, एहसास जिम्मेदारी, मज़ाहिब आलम का एहतराम और यतीम परवरी के दर्ज शामिल हैं। किसी मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर ईमान ना लाए। हमें दूसरों बिलखसूस कमजोरों की छोटी छोटी गलतियों को मुआफ करना चाहिए। इस मौका पर म्यूनिसिपल अफसरान मोहम्मद फयाज भट्टी, अकील अहमद खोकर, सब इंजीनियर गुलजार अहमद, सीनियर सहाफ़ी महमूद अहमद खान लोधी, सेंटर इंस्पेक्टर डॉक्टर निसार, जुनेद इकबाल, अदील अहमद लोधी और दीगर भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में शरीक मरूफ नाथानो, हाफिज रुबेल असलम, मोहम्मद जुबैर और दीगर ने सालत मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाय अकीदत पेश करके समा बांध दिया। बाद अज़ां तमाम हाज़रीन ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। कैमरा टीम के साथ एहसान लाही भट्टी, मेट्रो वन न्यूज, वजीराबाद। शादी की तकरीब में रंग में भंग पड़ गया। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की कार्रवाई। निजी मैरिज हॉल में जारी शादी की तकरीब रुकवा दी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने इलाहाबाद में चूनिया रोड पर वाक़े निजी मैरिज हॉल को कोरोना एसओपीज और इमरजेंसी पर अमल दरामद न करने पर सील कर दिया। मैरिज हॉल में जारी शादी की तकरीब रुकवा दी और शादी में आए हुए मेहमानों को खाना खाए बगैर रुखसत होना पड़ा, जबकि मैरिज हॉल के मैनेजर को गिरफ्तार करके मैरिज हॉल सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का कहना है कि कोरोना एसओपीज हर सूरत हाल पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और अब रुख करते हैं खानेवाल का, जहां पर टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मैचेस जारी हैं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। आने वाला हफ्ता शाने रहमतन लिल आलमीन के सिलसिला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेहमान ग्रामी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये इवेंट इनका इनकार किया। बहुत खुशी हुई और बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। ख़ास तौर पे छोटे छोटे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है कि हमारी यंग जनरेशन जो है ना दोबारा खेलों की तरफ आ रही है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और खानेवाल में टेबल टेनिस के हवाले से अंबर बशीर अहमद की खिदमात को हम सराहते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं कि वो टेबल टेनिस के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से अपनी गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
آج अंबर साहब ने जो मुझे टेबल टेनिस का ये कंपटीशन देखने का मौका दिया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस बात पर ज़ोर दूंगी कि अगर हमें बीमारियों से लड़ना है तो हमें खेल के मैदान आबाद करने होंगे और हमें कंपटीशन में आना होगा। और आज का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था छोटे बच्चों का। अगरचे हालात ऐसे हैं लेकिन फिर भी अंबर साहब ने ये कंपटीशन करवा कर सबको मौका दिया, टीचर्स को, छोटे बच्चों को, लड़कियों को और लड़कों को। तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस बात पे उनकी बहुत मशकूर हूँ और खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात ताहिर है और मैं टेबल टेनिस खेलती हूँ। और आज हमारे खानेवाल में एक इवेंट रखा गया जिसमें मैंने हिस्सा लिया और मैं फर्स्ट आई। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये इवेंट रखा, क्योंकि स्कूल में ये इवेंट्स होने चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर वगैरह बहुत ट्रेन करते हैं, अच्छा लगा, ये होना चाहिए। तकरीब में सीनियर वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम के सदर शेख अंजम बशीर, सीनियर सहाफ़ी शेख कुलज़म बशीर अहमद, आसिम रहील, पंजाब टेबल टेनिस के जनरल सेक्रेटरी हाजी शेख अंबर बशीर, मलक बाबर हुसैन, मोहम्मद खालिद चौधरी और मोहम्मद अब्दुल्ला मुल्तजिम ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। और आपको आगाह करें कि पतोकी में महकमा एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तकरीब का इनेकाद किया गया। पतोकी में महकमा एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में मुनक्किद तकरीब से खिताब करते हुए ज़हीर खान ने असातिज़ा और तलबा को अस्फ़ा हुस्ना का नमूना बनाने की तलक़ीन की ताकि ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी की बुलंदियों को छू सकें। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।